RG next email says, is my husband gay? Seeking guidance on a personal matter. Wait, ये तो एक मर्द ने ईमेल भेजी है, तो अगर आपके हस्बैंड तो okay, पढ़ लेता हूँ. Dear Junaid Akram, I hope this email finds you well. My name is ABC and I'm currently living in a European country with my husband and a daughter. Alhamdulillah, we are generally happy and enjoying life. My husband is an engineer and has a stable and a good job. We have been married for 2.5 years, though due to visa processing, I spent the first year and a half in Pakistan and I have been living with him for the past 1 year. My husband is a kind and supportive partner. However, as we've started living together, I've noticed some things on his phone that are troubling me. His Instagram feed, for instance, contains vulgar content like inappropriate memes and jokes. देखिए, इससे आगे अगर मैं जाऊँ, खुदा की कसम, अगर आप में से कोई मुझे मिला, and if I trust you enough, I'm gonna show you what my algorithm is like. आप सर पकड़ लेंगे कि यार आप सीमिंगली थोड़े से डिसेंट इंसान लगते हैं, ये क्या है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ मैन. इतने गलीज जोक्स होते हैं मेरे उसमें, इतनी गलीज चीज़ें आती हैं, मैं आपको बता नहीं सकता. बट दैट डजंट मीन कि मैं वो इंसान वैसा हूँ. It's just for shits and giggles, as they say. When I asked him about it, because what you search appears on the feed, he explained that he has a group of friends on Instagram where they share memes and similar content, and that when he views these forwarded reels, the content appears on his search feed. As absolutely. अरे मेरे पास इतना गे कंटेंट आ रहा होता है, वो लाइक इंस्टाग्राम पे, हालांकि वो ज़ाहिर है दे आर नॉट शोइंग इट इन एक्शन. सो आई हैव सम रियली होमोफोबिक फ्रेंड्स, लाइक रियली होमोफोबिक फ्रेंड्स. तो जितना गे कंटेंट आता है मैं सारा उधर भेजता हूँ कि तू देख, एज अ मीन्स ऑफ जोक. ऑफ कोर्स आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्वर्ट देम टू गेनिज्म, बट जस्ट फॉर जोक, बिकॉज आई नो कि उनका रिएक्शन क्या आएगा. वो फिर जो वॉइस नोट में जो गाली आती है ना, आई लाफ माई एस ऑफ. तो ये दोस्तों में इस तरह चलता है. Anyway, more concerning are some conversations I came across between him and his friends which seemed very awkward and vulgar to me. For example, अरे मैडम, आप लड़कों की अगर बातें सुन लेना आप छोड़ें. His friend wrote to him, मेरा पी मुंह में ले लो, अच्छा penis, and he replied, तुम्हारा छोटा है, मुझे मजा नहीं आएगा. So that doesn't make him gay. What? Another message said, मेरा दिल चाह रहा है तुम्हारी जी मार दूं. To which the friend responded, फिर मैं तुम्हारी मारूंगा. अरे भाई, लड़के ऐसे ही बात करते हैं. अब आपने ये नहीं लिखा कौन से शहर से, ये कराची की लैंग्वेज है. यहाँ बात ही ऐसे होती है भाई. अगेन प्लीज, reading these messages has deeply disturbed me and I can't stop thinking about them. I even confronted him about it, but he brushed it off saying लड़के ऐसे ही बात. Exactly. मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप if you think, अगर मेरी बात में आपको कोई वजन लगता है या आप भरोसा रखती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे गलीज तरीन बातें मैं अपने दोस्तों से आज भी करता हूँ और वो भी मुझसे करते हैं. That's how guys talk, and it means nothing. वो कहते हैं ना कि when a girl compliments another girl, hey this dress looks really good on you, they don't mean it. लेकिन when guy says अरे बिल्कुल लग रहा है, तो वो like कहते हैं thank you, they actually mean it. So yeah, when I posted this situation on the Soul Sisters group, many women there concluded that my husband might be gay, Allah maaf करे, by saying boys hide their orientation and you have to notice every moment of him. This has left me feeling very confused and unsure of what to think. I am reaching out to you in hope that you can provide some clarity or perspective on this matter. Your insights would mean a lot to me during this difficult time. Thank you for your time and understanding. Exactly, मैं यही सोच रहा हूँ. First of all, ये आपकी email जो है, ये मर्द के नाम से क्यों आई है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा. तो ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज, इतना तो मैं भी अंदाज़ा है और मैं कह सकता हूँ, ये जो आपने बातें लिखी हैं, दिस इज़ हाउ गाइज टॉक, में ऐसी कोई बात नहीं है. अनलेस के यू नो इफ़ ही इज़ वॉचिंग सम कंटेंट. ये जो आप मीम्स और रील्स की बात कर रही हैं, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है बहुत सारी चीज़ों में. जिस तरह किसी ज़माने में रिक रोलिंग ज़रा आप यूट्यूब कीजिएगा, RICKROLLING. तो रिक रोलिंग बहुत बड़ा ट्रेंड था 2012-2013 का, कि कोई भी सीरियस चीज़ हो रही है, अचानक से रिक एस्ले का नेवर गोना गिव यू अप आ जाया करता था, राइट. तो इसी तरह अब वो रिक रोलिंग चूँकि पुरानी हो गई है, तो अब नया रिक रोलिंग ये है कि एक सीरियस चीज़ चल रही है और एकदम जो है ना, इट टर्न्स इनटू द एनवर्ड आने लग जाता है, एंड देन इट शोज 2 ब्लैक मैन किसिंग ईच अदर. नाउ अब मैं वो देख नहीं रहा था, बट वो आ गया सामने, राइट, एंड आई लाफ्ड इट ऑफ एंड आई वेंट अब कि चलो यार कुछ और देखते हैं. बाकी ये कि भाई लड़के इसी तरह बात करते हैं. मैं आप कितनी बार ये बात बताऊं. अब अगेन वही वाली पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है ना बहुत सारा. अब आपने ख़वातीन के ग्रुप में लिखा, वहाँ सारी ख़वातीन है, वो आई डोंट नो. अगेन मर्दों के साथ अलग होता है, ख़वातीन के साथ बहुत डिफरेंट होता है, और पसंदीदा ख़ातून के सामने तो और ही डिफरेंट होता है. तो ये उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, एंड इसमें कोई वो हिपोक्रेसी वाली चीज़ नहीं है. इट्स जस्ट अ रोल. आप भी अपनी दोस्तों के साथ बहुत डिफरेंट होती होंगी,
राइट, अटखेलियां करती होंगी, मजाक मस्ती करती होंगी, बॉयज डिस्कस करती होंगी, क्यों नहीं करती होंगी, सब करती हैं। मगर आप अपने हस्बैंड के सामने आपका एक डिफरेंट ऑरा होता है, अपनी फैमिली के सामने और डिफरेंट होता है, ससुराल में और डिफरेंट होता है। दैट डजंट मेक यू हिपोक्रेट, दैट मेक्स यू अ गुड कमिलियन कि यार मैं हर सिचुएशन के हिसाब से ढल सकता हूँ। मेरे हर तरह के दोस्त हैं, पाकिस्तान चौक के मेरे दोस्त हैं, पुराने मोहल्ले के मेरे दोस्त हैं जो बात ही गाली से शुरू करते हैं। फिर मेरे बहुत सोफिस्टिकेटेड दोस्त भी हैं जो कि PhDs भी कर रहे हैं या जिन्होंने जो वर्ल्ड बैंक में काम करते हैं। नाउ दैट डजंट मीन मेक मी कि ओके मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, मैं हर रोल में अपने आप को समो लेता हूँ। तो दैट डजंट मेक यू हिपोक्रेट। देखिए, मर्दों का वैसे ही डाउन टाइम ज़िंदगी में बहुत कम होता है, उन पे बहुत प्रेशर्स होते हैं, इसीलिए मर्द जो हैं दे ऑप्ट फॉर वीडियो गेम्स या फिर बॉयज़ टाइम, क्योंकि उसमें उनको प्रिटेंड नहीं करना होता, उसमें दे कैन बी देमसेल्व्स बिकॉज आई नो दिस गाय इज़ नॉट जजिंग मी एट ऑल। ना वो मेरे कपड़ों पे जज कर रहा है, ना मुझे वो मेरे स्टेटस पे जज कर रहा है। एंड इफ़ आई कैन बी रियली रियली माई सेल्फ, तो ये बड़ा थेरेप्यूटिक होता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ थेरेपी। अगर आप एक काम करें, आप अपने हस्बैंड से ये सारे दोस्त छीन लें और बोलें कि भाई आइंदा बात नहीं करना, ये आप देखिएगा 2 महीने के अंदर और ऐसा डिप्रेशन में जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते, बिकॉज उनको वो एवेन्यू नहीं मिल रहा, वो कथारसिस नहीं मिल रहा। उनको बहुत गुस्सा होगा अपने बॉस पे, उनको बहुत गुस्सा होगा कि मैं पाकिस्तान से इतना दूर हूँ और मुझे जावेद निहारी नहीं मिल रही। तो वो गुस्सा के कथारसिस का तरीका है कि 4 दोस्त बैठ गए ग्रुप चैट पे और एक दूसरे को बस गालियां दे रहे हैं और गंदे मीम्स दे रहे हैं। दैट मीन्स नथिंग, क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर बाद लिबादा ओढ़ना है और आपके पास आ जाना है, जहाँ पे वो एक बड़े स्वीट से हस्बैंड हैं और बड़े वेल टू डू इंजीनियर लिखा आपने, क्या लिखा, राइट। एंड देन फिर उनको सुबह ऑफिस भी जाना है और वहाँ पे दूसरी ज़बान में बात करनी है। एंड लाइक सो ये डिफरेंट फेसेस होते हैं। अब आपने वो जो ग्रुप का नाम लिखा है वहाँ तो अजीब ही मशवरों की हिस्ट्री रहती है, अगर अक्सर चीज़ें स्क्रीनशॉट आ जाते हैं, लीक हो जाते हैं। तो प्लीज़ इसको अगेन आई डोंट नो व्हाट वुमेन आर देयर, या फिर उन्होंने जिस तरह बोला कि अरे वो तो गे हैं, अगर ये लिखा है तो वो गे हैं, अरे भाई। सो प्लीज़ हमेशा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचें, या फिर जैसे आपने मुझे भेजा तो मैंने आपको बड़े आराम से बता दिया कि मैं भी ऐसे ही बात करता हूँ। आप मुझे मेरी बीवी के सामने देखें तो मैं बहुत डिफरेंट होता हूँ, और रिश्तेदारों के सामने, घर वालों के सामने बहुत डिफरेंट, लेकिन मैं अपने दोस्तों के सामने बहुत डिफरेंट होता हूँ, कैमरे पे बहुत डिफरेंट होता हूँ। कैमरे पे भी तो मैं गालियाँ दे ही देता हूँ ना, राइट। ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान वाली बात नहीं है। अगर वो गे होते तो आपके साथ ना होते। हालांकि ये भी कोई गारंटी नहीं है कि कोई गे है तो उसके बच्चे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि टूल्स तो वही है ना। दूसरा, आप बहुत नाइव और बहुत भोली हैं, आप बहुत सीधी हैं। चिल करें ज़िंदगी में, हर चीज़ इतनी एक्सट्रीम पे ना लेके जाएं, वरना आप उनकी ज़िंदगी मुश्किल करेंगी, और जब उनकी ज़िंदगी मुश्किल होगी, जो महवर है घर का सीमिंगली, तो फिर सब गिर जाएगा। आप उनसे ये चीज़ें छीनेंगे, ये छीनेंगी। दिस द वर्स्ट थिंग women डू टू देयर हस्बैंड्स और देयर बॉयफ्रेंड्स और देयर सिग्निफिकेंट अदर इज टेक अवे what soothes them। हर वक्त वीडियो गेम खेलते रहते हो, हाँ, बिकॉज लाइक यू नो आई नीड टू वेंट थोड़ा सा। मैं दीवार पे सर नहीं मार सकता, आई हैव अ लॉट ऑफ एंगर, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशंस, तो मैं वो फीफा पे निकाल सकता हूँ या मैं वो COD खेल सकता हूँ। तो लाइक लेट मी बी। अगर आप बिल बर ने कहा था कि मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ विमेन को, इफ़ यू वांट टू कीप योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर, आप सुबह उठें, मेक समथिंग नाइस फॉर योर हस्बैंड और बोलें कि मैं जा रही हूँ और मैं कल आऊँगी, यूर ऑन योर ओन। साल में आप ये एक बार करें। या बोलें कि मैं सुबह 8 बजे आप निकल जाएं, मैं रात को 9 बजे आऊँगी, यूर ऑन योर ओन, एन्जॉय। ही विल थैंक यू। बाकी 364 दिन वो आपके इतना शुक्रगुजार होगा बिकॉज यू लेट मी बी। उल्टा हमारे यहाँ खवातीन क्या करती है, नहीं, इससे सारी चीजें छीनो। एंड इफ देयर इज अ संडे, मेन लव टू डू नथिंग, वी लव नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, वी लव समटाइम्स नॉट टू डू एनीथिंग। विमेन ऑन दी अदर हैंड, देयर लाइक ओके ये एम्प्टी बॉक्स है, इसको मैंने भरना है। रिश्तेदार के चले जाते हैं, मामू के चले जाते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, संडे बाजार चले जाते हैं। Men agree and they do it because they don't want to fight, but deep down they hate doing it. I'm telling you as a man, they hate it. दिल से नफरत होती है, बट वो करते हैं just to keep the peace. Or maybe they love you too much कि चलो she likes it तो I'll do it. But साल में एक बार ये करें, just leave the man be. Be like, I'm not gonna call you, I'm not gonna text you, ना मैं हेलीकॉप्टर बनूंगी, just be yourself. अब वो दिन भर वीडियो गेम खेले या फिल्में देखे, शीशा पिए, कुछ भी करे, जस्ट लीव हिम बी फॉर 1 डे इन अ ईयर, ही विल बी थैंकफुल टू यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर ईयर। सो या, लेकिन जहाँ आप इस तरह छोटे से, अव्वल तो फ़ोन में ना घुसें, ये कोई अच्छी हरकत नहीं है।
फ़ोन में घुसने वाली, ये इन चीज़ों से बाहर आए, ठीक है ना। ये फ़ोन में घुस के क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये बहुत गलत अपब्रिंगिंग है, बहुत गलत तरबियत है, झांका झांकी करना, ठीक है। अपने आप में आप इतनी कॉन्फिडेंट रहेंगे कहीं जाएगा ही नहीं। अपने आप को आप इतना अच्छा और इतना पीसफुल रखें कि आपको श्योर, देखें, अ मैन इज़ ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर पीस, ही विल गिव अप एनीथिंग फॉर पीस। और अगर पीस नहीं मिलेगा तो वो भागता रहेगा अगर आप उस घर को पीसफुल नहीं रखेंगी, राइट। तो अब बोलेंगे बड़े सेक्सिस्ट हैं आप, मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बिकॉज आई एम अ फकिंग मर्द, मैं उसी हिसाब से बात करूँगा ना, मेरे पास औरत का पर्सपेक्टिव नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ। तो लेकिन अगर आप वहाँ हेलीकॉप्टर बने रहेंगी कि तेरी चैट में तूने ये क्यों लिखा वो क्यों लिखा, वो बोलेगा यार अब मैं अपने ग्रुप चैट में भी इफ़ आई कैन नॉट बी माई सेल्फ तो फिर मैं क्या करूँ। तो फिर वो एक कोलू का बैल बन जाएगा, सुबह दफ्तर पे जाएगा, ही विल लिव अ मिजरेबल लाइफ। ही विल प्रोवाइड फॉर यू बिकॉज दैट्स व्हाट दे हैव टू डू, बिकॉज उनकी वैल्यू बनती है इस चीज़ से कि वो प्रोवाइड करें, क्योंकि वो औलाद है, अब औलाद के लिए करना तो पड़ेगा। मगर वो डीप डाउन वो मरा हुआ इंसान होता है, वो मर्द मरा हुआ होता है। उठेगा, ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करेगा, दांत साफ करेगा, नहाएगा, कपड़े पहनेगा, ऑफिस जाएगा, काम करेगा, घर आएगा, वीकेंड पे आपके साथ ग्रोसरी करेगा, एक बार खाने पे चला जाएगा, फिल्म पे चला जाएगा, पुष्पा देख लेगा आपके साथ। बट डीप डाउन ही इज़ अ डेड मैन, ही इज़ जस्ट अ डेड मैन वॉकिंग वेटिंग टू डाई। फिर ऐसे लोग ज़िंदगी नहीं जीते, फिर ज़िंदगी उनको जी रही होती है और फिर एक दिन ज़िंदगी बोलते हैं यार अच्छा मैं जा रही हूँ, आप ज़रा फौत हो जाएं। फिर यही होता है, इट हैपन्स टू अ लॉट ऑफ पीपल। तो प्लीज़ डोंट किल द चाइल्ड इन योर मैन एंड डोंट किल दैट एक्साइटमेंट। इससे क्यों बात कर रहे हो, उससे क्यों बात कर रहे हो, ये क्यों है, वो क्यों है, ये क्यों देख रहे हो, सोफे पे क्यों लेटे हुए हो, क्या है क्या नहीं है। वो अपना सर फाड़ देगा फिर किसी भी दिन, और ऐसे ही होता है। अब ख़ुदकुशी हराम है मुसलमानों में, तो इसलिए थोड़ा सा रेट कम है यहाँ पे, वरना इतने शौर लटक जाएंगे यार मैंने ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी जहाँ मैं थानेदार की तरह हर जगह पे मुझे हर सवाल का जवाब देना। अब वो अपनी चैट जस्टिफाई करता फिर है आपको कि जी मैं ये नहीं, मैं ये कह रहा था, फिर कल को आप कुछ और पकड़ लेंगी, फिर ये पकड़ लेंगी। तो प्लीज़ ये इतनी हेलीकॉप्टर, जो लोग जितना हेलीकॉप्टर बन के सर पे चढ़े रहते हैं ना, फिर इवेंचुअली वो मर्द भाग ही जाते हैं, वो कहते हैं मुझे जाना ही नहीं है। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, एंड आई स्पोक टू एन एक्टर हु वॉज गोइंग थ्रू अ बैड डिवोर्स, फिर हो गई थी इवेंचुअली, वो यही कह रहा था कि मैं आई वुड मेक श्योर कि मेरा ज़्यादा टाइम बाहर गुजरे, गाड़ी लेके कभी कहाँ कभी कहाँ। फेज़ 8 पे इतने सारे इस तरह के शोर घूम रहे होते हैं, रात को अकेले गाड़ी चला रहे होते हैं, वो सिगरेट पी रहे होते हैं, बिकॉज दैट्स द ओनली टाइम दे हैव। घर जाएंगे, घर में लड़ाई वेट कर रही है, सारा दिन ऑफिस में लड़ के आया है, घर में और लड़ाई वेट कर रही है, माँ अपनी शिकायत लेके बैठी है, बीवी अपनी शिकायत लेके बैठी है, और वो कह रहा है यार मेरा क्या कसूर है इसमें। वो अपनी आराम से एक सिगरेट जलाता है, वो गाना लगाता है, फेज़ 8 पे थोड़ी सी गाड़ी भगाता है और फिर सिगरेट बुझाता है, फिर घर आ जाता है, बस ये लाइफ है। सो प्लीज़ डू नॉट टेक अवे द चाइल्ड इन योर मैन, वरना फिर ही विल बी अ डेड मैन वॉकिंग एंड यू डोंट वांट दैट, दैट्स अ मिजरेबल लाइफ अहेड। सो प्लीज़ इन चीज़ों का ऐसी कोई मायने नहीं है। ऐसे अगर गे होने लगते तो पूरा पाकिस्तान गे होता, क्योंकि यहाँ हर बंदा बात ही इस तरह करता है कि मैं तेरी जी मार दूंगा, बट वो फिगर ऑफ स्पीच होता है, राइट, फिगर ऑफ स्पीच होता है। अच्छा, बहुत से लोग गालियाँ देते हैं एज एन एडजेक्टिव, जैसे अगर मैं बीसी करके बात करूं तो मैं आपको नहीं कह रहा, मैं वो एक फ्रस्ट्रेशन उसमें मैंने सम अप की और फिर मैं आगे अपना मुद्दा बयान कर रहा हूँ। अरे बहनचोद ऐसे नहीं करते, तो मैं आपको नहीं कह रहा, मैं वो पेंट अप जो थी ना वो निकालनी होती है, इट्स पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज। ये बोल दिया और मैं आगे बढ़ाऊँ, फिर इसमें अक्सर मैं क्वेश्चन होता हूँ कि तुमने गाली क्यों दी। अरे मैंने आपको नहीं दी गाली, ये गाली ये एडजेक्टिव है, ये फुल स्टॉप है, ये पीरियड है, ये कॉमा है, ये आपको नहीं है, ये इसको नहीं है, उसको नहीं है, ये सिर्फ अ वे टू एक्सप्रेस है। सो या फिगरेटिवली हर चीज़ के पीछे भागेंगी आप तो फिर आपको हर चीज़, फिर वही वाली बात है, फिर आपको रात को सोते हुए भी पर्दा हिलता हुआ नजर आएगा तो आप बोलेंगी हैं ये तो सोफिया लोरेन आ गई कमरे में, फिर आप मारती फिरेंगी पर्दे को। सो इन जिन भूतों से निकलें आप, वरना आपको हर चीज़ गलत ही लगेगी, फिर जब हर चीज़ गलत लगेगी यू विल लिव अ मिजरेबल लाइफ। एंड प्लीज़ फाइंड सम हॉबी एंड सम वर्क, दैट वुड बी बेटर। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है, हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।